पास तो आइडल रखोगे नहीं, तो वो पैसा आप कहीं पे भी लगा रहे हो वो इन्वेस्टमेंट सेंटर देखेगा। प्रॉफिट आप ये देख रहे हो कि आपने जितना भी खर्चा किया है और जो भी आपका सेलिंग है उसके बीच में आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो। एंड कॉस्ट सेंटर ये देखता है कि आप क्वालिटी अच्छी करने के साथ साथ हाउ कैन यू रिड्यूस द कॉस्ट. So these are the three responsibility centers in any organization, and that become a base for taking corrective measures. So corrective measures का क्या मतलब है कि आपने ये देखा कि this was my predetermined standard कि मुझे I need to produce the product at rupees 10. However, I am able to produce that product at rupees 12. So I have spent 2 more rupees. So then I will take the corrective measures if necessary. There may be another situation that I wanted to produce the product at rupees 10, but I have produced that product at rupees 9. So it's beneficial for my company. So I won't take any corrective measure. So S.N. Maheshwari has given a definition, which is reporting to management can be defined as an organized method of providing each manager with all the data and only those data which he needs for his decisions. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है. यू डोंट हैव टू गिव ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ इट. यू ओनली हैव टू प्रेजेंट दैट डेटा विच इज important for decision making, which is materialistic, which has certain impact on the organization when he needs them, and in a form which aids his understanding and stimulates his action. So it should be helpful in understanding. I told you that communication can be done with various methods, and one sort of communication is the visual communication. जो हम देख रहे हैं, तो आप किस तरीके से उस चीज को प्रेजेंट कर रहे हो वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो इस लाइन से विच एड्स हिज अंडरस्टैंडिंग मतलब कि उसकी अंडरस्टैंडिंग में इट शुड हेल्प एंड अकॉर्डिंगली द पर्सन कैन टेक द एक्शन. Any doubt in the definition? No, ma'am. Okay, Kishan. No, ma'am. Moving No, forward. ma'am. All right, Tanya. Objectives and purpose of reporting. Why do we need to report? This I've already told you. So, in order to see how effectively are we working, so there are few points. Right. So the first thing is means of communication. हमारा इम्पोर्टेंस क्या है, पर्पस क्या है. तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप जो भी रिपोर्ट देते हो वो कम्युनिकेशन में हेल्प करती है. किस चीज़ की कम्युनिकेशन में? कि आपने जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो हमें पता चलेगा कि हम क्या काम कर रहे हैं. ये अपवर्ड कम्युनिकेशन. आप ऊपर बता सकते हो कि दिस आई हैव डन, this was given to me, and this is what I have achieved. So it helps in, as the means of communication. Second point is basis to measure performance. आप ओके, लेट्स टेक अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. अगर आज आप पढ़ाई कर रहे हो, लास्ट इन द लास्ट क्लास आई गेस नब्बू टोल्ड मी कि मैम आप असेसमेंट्स लो. व्हाई असेसमेंट्स आर इम्पोर्टेंट? सो दैट वी नो कि हमने ये पढ़ा है और हम where we stand and how much efforts we have to put in. So basis to measure performance means कि आपको जो भी काम allot हुए during the organizing, आप उसको कहाँ पर पहुंच चुके हो. So whenever you write something on a piece of paper or whenever you write in the presentation, you know the actual performance. So it helps in the measuring of it. Third is satisfy interested parties. So there are many parties which are interested in the financial reporting of the company. It can be executives, government agencies, shareholders, your creditors, customers. And why these people are interested? Because they want to know where the company is growing. So it's very important for them to know that, okay, company was here when I invested and now the company is here. And you cannot talk verbally. So for that, you have to prepare the report. Next is serve as a record. When we talk about serve as a record means record provides valuable and important for any reference and purpose. आपको पता है, आपने you won't be able to remember things which you have done 2 years back or which you have done 3 years back, but a record of it, a reported of it, will help you in looking at the facts, and you may investigate in, for the future references. Next is legal requirements. As you know, for a company, you have Companies Act. For the bank, you have Indian Banking Regulations Act.
So for every company, you have different acts which you have to adhere to. So legal requirements means to complete the legality of a country, of a nation, you have to prepare the reports. Next is develop public relations. So whatever progress the business is making, it is very important for the public to know about it. हमारा जो RTI है, that we talk about, right to information, मुझे पता होना चाहिए कि ये कंपनी क्या कर रही है. जैसे बिफोर टेकिंग एडमिशन इनटू लॉयड, आप लोगों ने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पढ़ा. वो जो कुछ ना कुछ आपने पढ़ा, that's a format of a report. It could be in the form of testimonials, it could be in the form of asking the alumni, it could be form in the form of counseling. So all these are the public relations. So it is very important to develop the public relations. You should have that thing कि सिर्फ report पे ये नहीं दिखाना कि मेरे पास profit है. How many of you know about Satyam case? Which case में? Satyam. Ma'am, Satyam Computers of South. Yes. Yes, ma'am, I heard about that. You heard about it, but do you know about it? Anybody who knows about it? Don't know. Okay. So scams, सबको पता है scams क्या होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So अभी recent इतने सारे scams हुए हैं. नीरव मोदी scam हुआ है. सत्यम एक ऐसा scam था which happened for the first time in India, and it is very renowned scam. उसमें बेसिकली सिर्फ इतना था कि ये जो भी रिपोर्ट्स होते हैं, सो जब हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की बात करते हैं, सो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आप 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है. पीपल हु आर नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, सो ओके, जस्ट अ सेकंड. So when I talk about the financial reports, they are of 3 types. First is the balance sheet. Second is profit and loss account. Third is the cash flow statement. ये इसकी डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है. ये 3 एक स्टेटमेंट्स होती है जो हम बनाते हैं. इसके अलावा एक चेंजेस भी होता है, चेंजेस इन इक्विटी. सो व्हेन आई टॉक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे इसकी टर्म है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि आप एक ऐसा अकाउंट बना रहे हो, आप एक ऐसा रिकॉर्ड बना रहे हो जिसमें आप ये बता रहे हो कि कंपनी का एक्सपेंस कितना हुआ, कंपनी की इनकम कितनी हुई, और दोनों के बेसिस पे आप ये बता देते हो कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. Profit. करेक्ट. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सिर्फ इतना सा काम है. अब मैं ऑटोमेटिकली अगर अपने एक्सपेंसेस कम कर दूं और इनकम ज्यादा कर दूं तो क्या होगा? मेरा प्रॉफिट बहुत ज्यादा, करेक्ट, प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ जाएगा. बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट एक ऐसा अकाउंट है जो ये बताता है कि मेरी कंपनी के पास मेरे ऊपर कितनी उधारी है. लाइबिलिटी का मतलब क्या है? मेरे को कितने पैसे वापस करने हैं, एंड मेरे पास कितनी चीजें अवेलेबल है, जैसे घर में होता है ना एसेट्स. सो ये आपने ये बैलेंस शीट में दिखा दिया. अब अगर मेरे पास ज्यादा एसेट्स हैं, आप सोचो आप एक नॉर्मल बिजनेस में हो और आप दिखाते हो कि मेरे पास 10 कंप्यूटर्स हैं, एक बहुत ज्यादा बड़ा लैंड है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, शिप्स हैं, बहुत सारी चीजें, तो आप ऑटोमेटिकली अमीर लोगों की कैटेगरी में आ जाओगे ना. और अगर ऑन दी अदर हैंड मैं ऐसा दिखा रही हूँ कि मेरे ऊपर उधारी है, मुझे ए को 10 लाख रुपए देने हैं, बी को मुझे 1 करोड़ रुपीस देने हैं, बैंक को मुझे 50 लाख रुपए देना है, डी को मुझे कुछ एक्स अमाउंट देनी है, तो जब मेरे पास ज्यादा उधारी होगी तो मैं अमीरों में आऊंगी या गरीबों में आऊंगी? गरीबों में. लॉस मेकिंग कंपनी. करेक्ट. सो सत्यम केस में क्या हुआ, जो सत्यम का ओनर था राजू, उसने क्या किया, उसने अपने एसेट्स 500 टाइम्स ऊपर दिखाए. 500 टाइम्स का मतलब है कि एक एसेट अगर 1 करोड़ का था तो उसने कितने का दिखाया? 500 करोड़ का. तो अब उसने इतना ज्यादा दिखा दिया कि मेरे पास इतना सारा एसेट्स है, मेरे पास प्रॉफिट इतना ज्यादा है, तो कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई. बट एक्चुअली वो अच्छी नहीं थी. उसने क्या किया, अपने डेटा के साथ मैनिपुलेशन की, चेंजेस किए डेटा में, फॉर्जरी करी. सो एक रिपोर्ट से, और लेकिन मैं तो बाहर बैठी थी, मैंने क्या देखा, मैंने देखा सत्यम एक कंपनी है और यार इसके पास तो बहुत पैसा है, इसके ओनर्स के पास इतना एसेट्स है, तो ये मुझे बहुत ज्यादा रिटर्न दे देंगे. रिटर्न. तो मैंने क्या सोचा, अरे यार यहाँ पे पैसा लगा देते हैं.
बट मुझे क्या पता था कि वो कुछ घपला कर रहे हैं अंदर, दे आर रनिंग अ स्कैम, वो इतने टाइम से अपने अकाउंट्स में मैनिपुलेशन कर रहे हैं। सो इज दिस क्लियर? Yes, सो ma'am. डेवलप पब्लिक रिलेशंस Yes, का ma'am. क्या मतलब होता है कि आपको अकाउंट्स में मैनिपुलेशन नहीं करनी है, आपको अपने रिपोर्ट्स में कोई मैनिपुलेशन नहीं करनी है, आपकी जो एज इट इज रिपोर्ट्स है वो दिखानी है जिससे आपकी गुडविल पे इम्पैक्ट ना पड़े। क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज कंट्रोल। रिपोर्ट्स क्या करती हैं? अभी मैंने सिंपल सी बात है, मैंने आपको कोई रिपोर्ट बताई, अगर आपकी रिपोर्ट है, आपके एग्जाम में रिजल्ट्स रिपोर्ट आती थी, ये सारे रिपोर्ट कार्ड्स ही तो बोलते थे हम, जो आते थे हमारे एग्जाम्स के बाद कि आज हमारा रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। रिपोर्ट कार्ड ये बताता था कि मैंने पूरे साल कितनी मेहनत की एंड हाउ मच आई हैव स्कोर्ड एट द एंड ऑफ द डे, और मुझे अपनी नेक्स्ट क्लास में कितनी मेहनत करने की जरूरत है। सो कंट्रोल्स यही बताते हैं कि ये मेरी मेहनत थी, दीज वर द प्रोसेसेस व्हिच आई हैव डन एंड नाउ आई हैव टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। Anybody who has a doubt in this, the importance of report? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Great. Ma'am, one question, No, ma'am. ma'am. Yes, yes, Ayush, Sonali, whosoever. Ma'am, Hmm. ma'am, Yes, can we call summary as a control while we are preparing a report? No. Summary only gives the detailing of what you have done in the organization. Okay. वो आपके प्री डिटर्मिन स्टैंडर्ड्स को नहीं दिखाते कि ये हुआ था। जैसे समरी होगी आपके रिपोर्ट कार्ड की कि जैसे आपके आए 85%, रिपोर्ट होगा कि मैथ्स में इतने आए, एसएसटी में इतने आए, साइंस में इतने आए, आपके इंटरनल्स में इतने आए, एक्सटर्नल्स में कितने आए। Okay, ma'am. Ma'am, documentation and report are same. Okay, yes. So report is something that you are presenting, और जो आप वो करते हो उस प्रोसेस को हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। Okay, ma'am. Any other doubt? मैम एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो दो अलग चीज है ना, अलग चीज है ना? क्या राजदीप, कैन यू प्लीज रिपीट? एसेट्स एंड लायबिलिटीज दो तो अलग चीज है। दोनों अलग चीज है। Yes, ma'am. Assets means आपके पास क्या संपत्ति है, what you own. Liability means what you owe, आपको क्या वापस करना है। ओके, मतलब धार की तरह ना, मतलब इंटरेस्ट की तरह। राइट। ओके मैम, थैंक यू। Any other doubt? No, ma'am. Great. So moving forward, these are few types of reports that that an organization prepares. So first is business reports. Business reports क्या होता है? It is actually a report of an individual activity. जैसे suppose I deal in multiple products. I deal in mobile phones. I deal with computers. I deal with any other, say, PlayStations. I have these three types of electronic gadgets. Business report means कि मैं mobile phones के एक अलग से report दिखा रही हूँ that I have sold these many mobile phones and this was the profit that I have earned out of it. I have sold these many computers. This is the profit that I have earned. I have sold these many PlayStations and maybe I'm earning loss into it. So business report means एक individual activity की आप सारी चीजें दिखा रहे हो. That's a business report. When I talk about status report, स्टेटस का मतलब है कि अभी क्या फाइनल चीज चल रही है। जैसे अभी बताया था आयुष टोल्ड अबाउट समरी, राइट? सो स्टेटस रिपोर्ट इज सॉर्ट ऑफ अ समरी। आप एट अ पॉइंट क्या है, मतलब मैंने आपसे कहा गिव मी अ स्टेटस रिपोर्ट, तो मैं ये कह दूंगी कि एज ऑफ नाउ आई हैव सोल्ड say 500 mobile phones, I have sold 200 mobile laptops, and I have sold say 50 PlayStations. और स्टेटस क्या हो गया कि मेरा टोटल प्रॉफिट इज आउट ऑफ दोस 500 मोबाइल फोन्स इज से 5 लाख रुपीस, 100 कंप्यूटर्स में से आई हैव अर्नड से 2 लाख रुपीस एंड प्ले स्टेशंस में से आई एम इनटू अ लॉस ऑफ से 3 लाख रुपीस। सो दिस इज द स्टेटस रिपोर्ट। सो स्टेटस रिपोर्ट्स मींस कि कितना कितना हो गया, द अल्टीमेट थिंग। नेक्स्ट इज द प्रोसेस रिपोर्ट। प्रोसेस रिपोर्ट क्या होती है? आप पूरे अपने प्रोसेस की रिपोर्ट दे रहे हो कि मैंने फर्स्ट डे को इतने कंप्यूटर सोल्ड किए, फर्स्ट डे को मैंने इतना लैपटॉप सोल्ड किया, फर्स्ट डे को मैंने इतना किया, इतने एम्प्लॉयज आए थे, इतना बार्गेन हुआ, इतनी नेगोशिएशन हुई,
मेरे कौन से वाले सेंटर पे आई हैव सोल्ड मेनी लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स, इफ देयर इज ओनली वन सेंटर तो हाउ मेनी एम्प्लॉयज वर देयर, किसने बेचा, so everything you are giving a detailed report about it, so that's a process report. Next is project portfolio report. Project portfolio report क्या होती है? It's like a time log. टाइम लॉग मतलब कि जैसे सपोज आई एम वर्किंग ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होता. जैसे से विद द सेम एग्जांपल, मैं उस शॉप में आई एम एन एम्प्लॉय. अब मेरे अंदर 3 प्रोडक्ट्स हैं. आई हैव 3 प्रोडक्ट्स. आई हैव मोबाइल फोन्स, आई हैव लैपटॉप्स एंड आई हैव प्ले स्टेशंस. सो नाउ व्हाट विल हैपन? किशन, कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक? सो नाउ व्हाट विल हैपन, मेरे पास ये 3 प्रोडक्ट्स हैं. प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो रिपोर्ट क्या देगी कि मैंने हाउ मेनी मोबाइल फोन्स आई हैव सोल्ड, how many laptops or computers I have sold, and how many PlayStations I have sold. How am I able to convince people? अब ये नहीं है कि मैंने कितना बेचा है. They will also ask me कि मेरे पास total number of customers आए कितने थे. से मेरे पास customers बहुत सारे आए, बट मैं उनको ultimate consumer में convert ही नहीं कर पाई. तो that is also a problem. तो आपके पास prospectives नहीं देखना है, finally वो खरीद रहे हैं, इसकी भी आप report कर रहे हो. So that is a portfolio. And the last is the analysis report. Analysis report क्या होता है कि पूरी financial चीज को आप analyze कर रहे हो कि इतना पैसा हमने लगाया, इतना हमारा रेंट गया, इतनी बिजली गई, इतने स्टाफ को we have paid, this much we have spent on advertisement, this much we have spent on marketing, and this much we have paid on taxes. And then you are analyzing everything, that what is the market share of the company. That is the analysis report. Anybody who has a doubt in any of the report? Ma'am, please explain again the project portfolio reports. Sure. Somebody is presenting the screen. Let me just do that. Okay, so project portfolio report is actually a report which is, okay, so let me give you a very small example, फिर आपको उससे समझ आएगा. पोर्टफोलियो सुना है क्या होता है? फोटो का पोर्टफोलियो बनता है. Who asked this question? Am I audible? Ma'am, me. Yes. Ma'am. Okay. So Rajdeep, have you heard the portfolio of photos? No, ma'am. ओके, सो बच्चे, पोर्टफोलियो का मतलब होता है एक बकेट. एक बकेट जिसमें बहुत सारी चीजें आप डाल देते हो. अब हम पोर्टफोलियो बनाते क्यों हैं? जैसे मैंने फोटो का पोर्टफोलियो बनाया. अब आप, जैसे आप मेरे क्लाइंट हो, मैं एक फोटोग्राफर हूँ, मैं आपके बहुत सारे पोर्टफोलियोज ले लूंगी. आपके कुछ फॉर्मल पिक्चर्स ले लूंगी, कुछ कैजुअल पिक्चर्स ले लूंगी, कुछ फंकी पिक्चर्स ले लूंगी, एंड कुछ से काफी ट्रेडिशनल फोटोज ले लूंगी. सो ये क्या हुआ? एक मिक्सचर हो गया बहुत सारी एक्टिविटीज का जो आप कर सकते हो. इसी तरह प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो रिपोर्ट्स क्या होती हैं? एक बिजनेस कभी भी एक चीज नहीं करता, ये आपको देखना हमेशा ही होता है. ये एजुकेशन सेक्टर में भी क्यों हो, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व्ड इन मल्टीपल एक्टिविटीज. सो वो जो मल्टीपल एक्टिविटीज के लिए होता है, वो एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं. कि जैसे सेम एग्जांपल कि मेरे लैपटॉप में, ये मेरा पोर्टफोलियो था कि मेरे पास 3 चीजें थी, कि मेरे पास लैपटॉप भी था, मेरे पास मोबाइल फोन्स भी थे, और मेरे पास प्ले स्टेशंस भी थे. सो नाउ दे विल क्रिएट अ पोर्टफोलियो फॉर मी कि मेरे पास मैंने 10 मोबाइल फोन्स भेजे, 15 लैपटॉप्स बेचे, एंड 0 प्ले स्टेशन आई हैव सोल्ड. जिसमें से मेरे पास से हंड्रेड्स कस्टमर्स आए थे प्ले स्टेशन के, बट आई कुडंट कन्वर्ट देम. Why are they creating this? कि जिससे उन्हें पता चले individual performance of the employees. Similarly, individual performance of the product. Similarly, individual performance of the project. अब प्रोजेक्ट कैसे? आपके पास प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट सी है. आप मुझे बताओ, आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी. प्रोजेक्ट ए पे आपको 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना है, प्रोजेक्ट बी पे भी आपको 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना है. प्रोजेक्ट ए आपको एंड के ईयर में 1,50,000 रुपीज रिटर्न करेगा,
और प्रोजेक्ट बी आपको ईयर के एंड में से 3 लाख रुपीस रिटर्न करेगा, तो आप प्रोजेक्ट ए चूज करोगे या प्रोजेक्ट बी चूज करोगे? Of course, B, ma'am. ऑफ कोर्स भी मैम। ऑफ कोर्स बी मैम। लेकिन प्रोजेक्ट बी पे आपकी इन्वेस्टमेंट भी 2 लाख रुपए जा रही है। मैम 1.5 लाख बोला था आपने। अच्छा अच्छा मैंने 1.5 लाख बोला था। तो जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट जा रही है दैट इज 1 लाख, और बी पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट जा रही है दैट इज 2 लाख। प्रॉफिट आपका इस केस में है 2 लाख, नहीं इस केस में इट वाज 1.5 and in this case it is 3 lakhs. Sorry for my विल चूज ए। Then I'll choose A, ma'am. okay, we'll choose A or I'll an choose A B, or ma'am. B. Yes, ma'am. Okay. Because it's more profitable. मैम depends on profit Both of them percentage create Yeah. the same amount of profit. Two people are बोथ आर speaking सेम प्रॉफिटेबल। simultaneously. Both are same प्रॉफिटेबल। profitable. Okay. मैम एक्चुअली हेलो Both Yes. are same. Ma'am, actually, it depends on investment. If a person has 2 lakh rupees, Yes, ma'am. then they How can much we go are for, spending? yeah. Absolutely. So there are multiple factors. मतलब मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट के बेसिस पे नहीं देख सकती। अगर मेरे पास 2 लाख रुपए हुए ही नहीं, then I have to borrow that money. मैं वहां से पैसे लूंगी, then I'll pay interest on it. Eventually my profit will reduce. So it's better not to take money from the outside and invest in this particular plan. So there are multiple factors. तो पोर्टफोलियो बस इतना सा कहता है कि आप एक चीज पे यू डोंट इन्वेस्ट, यू कंसिडर मेनी थिंग्स एंड देन यू क्रिएट अ बकेट ऑफ इट। राजदीप, Yes, ma'am. Yes, इज इट ma'am. क्लियर या फिर मैंने आपको और कंफ्यूज कर दिया? No, ma'am, it's clear now. ओके, एनीबॉडी एल्स हु हैज अ डाउट? Yes, ma'am. But Ma'am, can you please explain analysis reports again? Sure. Anybody else apart from analysis report? Yes, ma'am. then as you explained, status report and process reports. So as I am able to understand that both the things is telling that continual progression of anything is considered in these reports. Like in status reports, whatever is going on, that will come under status reports. And in So status is yes. and in process reports also, I think you have told the same thing. No. Okay, so please clarify this. Sure. So So first, let us talk about the status report. When I talk about the status report में जैसे I'm taking these three examples: laptops, phones, and PlayStations. Okay, phones and PlayStations. ये तीन चीजें आपके पास status report की आएगी. Today is 18th of June. So status report will only tell me that I have sold 100 laptops, 200 phones, and say 50 PlayStations. This is the status. और अगर मुझे इसमें और डिटेलिंग चाहिए तो ये हो गए। और अगर मुझे देखना है कि हाउ मच प्रॉफिट आई हैव अर्न, सो मैंने देख लिया कि यहाँ पे से 5 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज और नेगेटिव 1 लाख रुपीज। ये मैंने देख लिया कि प्ले स्टेशन के केसेस में मुझे लॉस हो रहा है और ये मेरे बाकी दो के केसेस में प्रॉफिट है। दिस इज व्हाट स्टेटस रिपोर्ट विल टेल। प्रोसेस रिपोर्ट क्या बताएगी? प्रोसेस बताएगी कि लैपटॉप से 1 जून को इतने गए थे, से 1 जून को लैपटॉप गया आपके 20, 2 जून को आपके कोई लैपटॉप नहीं गया, 0, 3 जून को यू सोल्ड 5, 4 जून को यू सोल्ड 3, और इस तरीके से पूरा आपको एक फॉर्मेट दे देगी ऑफ एवरीडे सेल्स, जिसकी वजह से आप 18 जून को इस फिगर्स पर आ जाओगे। That is the function of a process report. Now what analysis report will do? Analysis report एक ग्राफ बना देगी, जैसे week 1,
वीक 2, वीक 3 वो एनालाइज करेगी कि मेरी कॉस्ट कितनी थी. से फॉर वीक 1 आई हैव सोल्ड 10 लैपटॉप्स. This is for laptops only. So week 1 में I have sold 10, week 2 में I have sold 70 and week 3 में I have sold 20. फिर ये हो गया कॉस्ट मेजर करेंगे दैट वन लैपटॉप कितने कितने का था. इसकी टोटल कॉस्ट आई से 2 lakhs, इनकी टोटल कॉस्ट आई 14 lakhs, द कॉस्ट फॉर देम इज 5 lakhs. Then they will see कि हमने कितना profit earn किया, how much was the selling price, then the profit, and on the basis of it they will give a chart. ये चार्ट जैसे आपके रिपोर्ट कार्ड्स में नहीं बनता था, आपके फर्स्ट टर्म में आपने 70 आया, फिर आपके इंक्रीज होके 80% हो गया, देन कहीं पे अगर आपका फॉल हुआ. सो दिस इज द एनालिसिस रिपोर्ट. एनी डाउट? No, I'm clear, ma'am. No, ma'am. Thank you. Okay. So moving forward, next is budgeting. So when I talk about the budgeting, so this somebody read for me. Maybe Astha. Sushmita, can you please read this? Oh, yeah, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Finance is the lifeblood of an organization. The manager is responsible for the management, expenditure, and control of the department budget, and also has to keep an eyes on tax detail. In additional to employee wages, task of it is a task of the manager to also properly monitor other expenditures such as material and investment. If wasteful spending, overrun, error, or even fraud are discovered, the manager is responsible for taking action. Thank you so much. So this, you know, that for any organization, at the end of the day, it is the money, it is the finance. So for any organization, be it an IT firm, be it a pharmaceutical organization, be it a manufacturing unit, for every sort of organization, finance is something that plays an important role. So for every manager, it is responsible. They are responsible for the expenditure, and they have to keep an eye on the budget also. अब budget क्या होता है? Budget something जो हम सब बनाते हैं कि this is something we are going to spend. It could be fortnightly, it could be for a month, it could be for 6 months, it could be for a year. जो भी आपने सोच रखा है, you will draft few lines, outline on it कि this would be the amount that I will spend on these activities. That is the budget. Creating a plan to spend your money. Right, absolutely correct, Deepak. So when I talk about the budgets, so every organization prepare 3 types of budgets. First is the operating budget, second is the cash budget, and third is the capital expenditure budget. Operating budgets means अभी मैंने आपको बताया, which is profit and loss account indirectly. That is आपके day to day expenses क्या हो रहे हैं. जैसे अगर आप जो भी खर्चा है, ट्रैवलिंग है, फूड है, अकोमोडेशन है, ऑल दीज आर योर ऑपरेटिंग बजट्स. आपके ऑपरेशन, खुद के ऑपरेशन के लिए, बिजनेस के ऑपरेशन के लिए जो भी पैसा आप खर्च कर रहे हो, दैट इज ऑपरेटिंग बजट. कैश बजट्स, मेरे पास इतना पैसा आया और इतना पैसा गया, दैट इज सिंपली अ कैश बजट. एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट मीन्स जो आप डेली एक्सपेंस नहीं कर रहे हो, बट वो आप कभी कभी करते हो. जैसे आपने गाड़ी खरीद ली, फ्रिज खरीद लिया, टीवी खरीद लिया, मोबाइल फोन ले लिया. दिस यू आर नॉट बाइंग एवरी डे, so that is a capital expenditure budget. Now there could be an overlapping also. आपने फोन खरीदा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में भी आएगा और वो कैश बजट में भी आएगा. ऑपरेटिंग बजट की जो भी चीजें हैं वो आपकी कैश बजट में भी आएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर गिविंग कैश टू समबडी. एम आई क्लियर? ये 3 के डिफरेंशिएशंस में कि ये होते क्या है. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. सो एक बिजनेस को, एक ऑर्गेनाइजेशन को ये तीनों बजट्स बनाने होते हैं, और ये तीनों बजट्स इंडिविजुअल होते हैं. कोई भी बजट आप रिलेट नहीं कर सकते हो, यार ऑपरेटिंग में तो ये हो रहा है, कैश
बजट में ये हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में ये हो रहा है. No, these are three individual units and they have no connection with each other because items may be overlapping. So when I talk about the budgeting process, how do we start with it? So first of all, we prepare the budget. और budget कभी भी आप दिमाग में नहीं बनाते. आप you always note it down. आपने उसको लिखना है कि मेरी ये organization है, मुझे I have to spend this much on electricity, this much will be spent on employees, this much will be spent on rent, this much will be spent on daily operations. You have prepared the budget. So suppose you have prepared the budget in the starting of the month on 1st of June 2020. Now, after preparing that budget, what will you do? क्योंकि budget कोई भी lower level employee नहीं बनाएगा, it will be created by the top management. Top management वो budget बना के क्या करेगी? Communicate करेगी. Communicate किससे करेगी? Middle level managers and lower level managers को कि ये हमारा propaganda है. हम प्रोडक्शन में सिर्फ 10,000 करोड़ लगा सकते हैं, हम मार्केटिंग में सिर्फ 2 करोड़ लगा सकते हैं. अब आपके पास सिर्फ इतना ही पैसा है. नाउ यू सी कि आप अपने डिपार्टमेंट में वो 2 करोड़ रुपए कैसे यूज कर रहे हो या हाउ आर यू यूजिंग दोस 10,000 करोड़. आफ्टर कम्युनिकेटिंग द बजट दे विल मेजर द रिजल्ट्स. अब आपके पास पैसा है, आपने कर लिया, कभी कभी होता है ज्यादा खर्च हो गया पैसा, बट ऑपरेशंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रुकते नहीं है. आपको 2 करोड़ दिया गया था, आपने देखा शिट यू हैव स्पेंट 2.5, तो वो 50 लाख रुपीस एक्स्ट्रा जो खर्च हुए हैं आप उसके एनालिसिस करना स्टार्ट करोगे कि ये 50 लाख कहाँ पे खर्च हो गए. कभी कभी होता है हम शॉपिंग करने चाहते हैं, हमने सोचा होता है कि आज तो हम विल ओनली स्पेंड 5,000 रुपीज, और जब आप घर आते हो तो यू रियलाइज दैट यू हैव स्पेंड 10,000 रुपीज. तो आप क्या करते हो? ये एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हो कि वो एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज गए कहाँ, मैंने कौन सी एक्स्ट्रा चीज खरीदी जो मुझे नहीं खरीदनी थी. Similarly goes with an organization. They also analyzes the deviations. फिर उन्हें समझ आता है अच्छा हमने ये गलती करी है, अब उस गलती के लिए वो क्या करेंगे? They will take corrective actions. They will improve that mistake. एक बार गलती कर दी. Now they will take the corrective actions and accordingly they will revise the budget. अब कभी कभी क्या होता है कि आपने जानबूझ के एक्सपेंडिचर नहीं किया होता, लेकिन मार्केट में रेट्स बढ़ जाते हैं. आपने सोचा था कि यार पिछले महीने आपके दोस्त ने मोबाइल फोन लिया, वो 10,000 का था, अब वो हो सकता है कि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो उस मोबाइल फोन की, और इनिशियली जब आपने सोचा कि लेट्स बाय दैट फोन, उसका मार्केट प्राइस इंक्रीज होके 16-17,000 हो गया. सो इवेंचुअली यू आर स्पेंडिंग 6-7,000 मोर, जिसमें आपकी गलती नहीं है. तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना बजट रिवाइज करते रहते. एनी डाउट इन दिस? Now you all will be the budding managers and it is very important for you to understand that what all tips you should have. ये तो पता है हमें वाली चीज होती है यार, what's new in this we are applying every day, but maybe we are not aware of the process और हमें वो jargons नहीं पता, ये terms नहीं पता. But as a manager, what are the tips for me? और आप में से ऐसे बहुत से बच्चे होंगे who are not from finance area and who don't have interest in finance. तो क्यों पढ़ना है? Why budgeting is important for every manager? So here are few tips. First tip is know your organization budgeting timeline and procedures. आपको पता होना चाहिए, even if you are not from finance area, आप HR के हो, marketing के हो, सबको budget help करता है. Marketing वाले को भी मैंने बताया you have to see के advertisements क्या हो रहे हैं. HR वाले को ये देखना है कि हम मेरी ऑर्गेनाइजेशन कैन ओनली गिव 1 करोड़ रुपीज आज सैलरी पर मंथ एंड दे नीड अदर एम्प्लॉयज ऑल्सो, तो किसको कितनी सैलरी ऑफर करनी है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट. सो नो योर ऑर्गेनाइजेशन बजटिंग टाइमलाइंस मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कब बजट के साथ प्रिपेयर करता है और क्या क्या चीजों पे वो ज्यादा फोकस करता है. जैसे मैं इंडियन गवर्नमेंट का एग्जांपल दूं, पहले हमारे यहाँ पे डिफेंस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ बजट, इट वाज, बट द hefty amount was not being allocated to that particular sector. From last few years we are separately giving a hefty amount, we are investing a huge amount of defense, क्योंकि वो हमने realize किया कि defense is something which is grooming. So आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कब बजट्स बना रही है so that you can pitch in. अब ये नहीं कि वो बना रही है 1 जनवरी को, उसने आपको बजट लाकर दे दिया एंड देन यू आर क्रिपिंग यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं आया, मेरे डिपार्टमेंट के पास तो ये है नहीं. आपको पता है कि 1 जनवरी को बन रहा है,
तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग द प्रपोजल कि मेरे 1 साल का आउटलाइन ये होगा और मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन से इतने फंड्स चाहिए एंड आई पिच इन दिस अमाउंट, और जितना भी रीजनेबली वो मुझे एलोकेट कर सकता है, आई शुड गेट दैट फंड. सेकेंड इज लीवरेज फाइनेंशियल डेटा. लीवरेज फाइनेंशियल डेटा का क्या मतलब है कि आपने जब जितने भी अभी मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स बताई, वो आपको स्टडी करनी आनी चाहिए. आपको उसके डिटेल एनालिसिस नहीं कि भाई आपको पता हो कि बैलेंस शीट में हर एक चीज बहुत अच्छे से पता हो, नहीं. इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट, आई अग्री समटाइम्स इट्स बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दोस टर्म्स, बट बेसिक आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, रेवेन्यू क्या है, टर्नओवर क्या है. क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, वो फाइनेंस की ऑर्गेनाइज कंपनी हो या ना हो, हर जगह पे ये टर्म्स यूज होंगी. So this is leverage financial data. Second is work towards goals. आप जब भी बजटिंग की बात होती है तो उसके एसोसिएटेड कुछ गोल्स भी होते हैं, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इतना सारा पैसा अपने बजट में डाल रही है तो अल्टीमेटली उसको प्रॉफिट भी चाहिए. तो ये नहीं कि सिर्फ पैसा लेना लेना है अपने डिपार्टमेंट के लिए, उसके बाद उसको आउटपुट भी देना है सो दैट दे कैन अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ इट. सो आपको पता हो दैट व्हाट आर द गोल्स एंड यू कैन वर्क टुवर्ड्स इट अकॉर्डिंगली. Next is evaluate performance. Every time you don't have to wait for the feedback. You have to evaluate your own performance. This is something which I am sharing from my personal experience, and this many of you might know. Maybe सबको भी पता हो, but I'm just sharing it as something which I find really important. जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, there are 2 things जो हमें प्रोफेशनल बताता है. First, you should always have a diary and a pen with you. आपको किसी नॉर्मल जगह पे भी जाना हो, keep a small diary and a pen with you, because sometimes what happen, वो 2 minutes की conversation is something which can impact your performance. Second, always evaluate your performance either on daily or twice or thrice. अब आप evaluate कैसे करोगे? कोई format लेकर नहीं बैठना है. आप जब भी सुबह ऑफिस में जाओ, और एज अ स्टूडेंट ऑल्सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपके पास जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हो, यू शुड हैव वन डायरी जिसमें आप डेली, एंड दैट शुड बी अ कैलेंडर डायरी. डोंट कीप अदर डायरी जिसमें डेट्स नहीं होते. राइट योर टू डूज. मुझे आज पूरे दिन में ये करना है, एंड एट द एंड ऑफ द डे जस्ट इवैल्यूएट इट कि आपने उसमें से कितना काम किया है. एंड ट्रस्ट मी, दिस विल हेल्प यू इम्प्रूविंग योरसेल्फ. बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो उन टू डू लिस्ट पे एडहेयर होते होंगे कि आज आपने सोचा यू हैव टू डू दिस, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं होते होंगे. एज अ पर्सन समटाइम्स इट हैपेंस विद मी कि मैं कुछ काम नहीं कर पाती जो मैंने पूरे दिन का बनाया होता है, बट यू नो कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो और आपको कितना कितना टाइम करना है, बिकॉज इट स्किप्स फ्रॉम योर माइंड व्हेन यू हैव मल्टीपल थिंग्स टू डू. सो यू हैव 2 years, आप उसको इन्वेस्ट करो. Next is communicate progress and results. After analyzing your performance, आपने वो to do बना लिया, आपने वो budgets बना लिए, आप अपनी progress और results share करो. वो progress अच्छी भी हो सकती है, जैसे मैंने कहा कि some of you would be able to achieve those goals. Share it with your colleagues, share it with your friends, share it with your people in your organization. This will help in motivation. And if you are not able to achieve it, talk to people who are expert in that domain. Maybe you are doing something wrong, तभी आप वो अचीव नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप 24 आवर्स के हिसाब से अपने गोल्स बहुत ज्यादा हाई कर रहे हो. So this will help you in understanding. Am I clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anybody who has a doubt? No, ma'am. No, ma'am. So this was all about today's class. Since none of you have a doubt, even if you have any doubt, you face any problem, this was my email ID. You can note it down and you can write an email to me. From next class onwards, since we have completed these basics of general management, I'll share the details with your mentors also. I'm planning to conduct a presentation, sort of a platform for all of you, so that you know how to prepare the presentations and how to present it. So maybe 10 students in a day or 15 students in a day, जिसमें हम सब एक दूसरे की performances evaluate करेंगे.
And that would be something which would be related to your general management topics. और किसी चीज से related वो नहीं होगा. तो जैसे planning में I'll give you a topic कि आपके पास कोई business plan है और आपको वो business plan present करना है, या फिर you have to come up with a plan, or it may be something like कि जैसे, so I'll give you the whole agenda. जैसे प्रिया है, प्रिया ने सोचा that she has to come up with a company, say Dream Chocolates. That is the company that she wants to open. अब Dream Chocolates एक company है. Now Priya will make a team of 3-4 students. Proper guidelines will be issued to you. कभी मुझसे questions मत पूछना कि वो है क्या, but मैं आपको basic बता रही हूँ. तो जैसे 3-4 students Priya ने they are in a team. So Priya will explain the planning part. कि ड्रीम चॉकलेट्स एक्चुअली कैसी कंपनी है, उन्हें कितना पैसा चाहिए, वो क्या क्या करेंगे. फिर द अदर मेंबर ऑफ दैट टीम विल एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजिंग पार्ट, द अदर मेंबर विल एक्सप्लेन द स्टाफिंग थिंग, द अदर मेंबर विल एक्सप्लेन different functions, and how in this way it will be carried forward. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. All right. Okay, thank you everyone. So this was all about today's class. All the best.